Good morning, everyone. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important topic of class 10 ICSC, that is total internal reflection and critical angle. Right, children? Children, this is chapter number 4, exercise number D, right? Children, this topic is very important. Trust me, okay? And at the same time, this is absolutely wonderful topic. My one of the favorite topic, right, children? So, children, you know the punchline. Can you tell me what is the punchline? Yes, build it right and build it once. राइट चिल्ड्रन? सो बच्चों, अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और तुम्हें पता है कि क्या करना है, राइट? आओ पढ़ते हैं एक आईसीएससी बच्चों, आईसीएससी क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 4 चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर डी. क्या बच्चों? दैट इज क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लियर बच्चों? ठीक है. तो बच्चों, एज यू नो, योर इन्वॉल्वमेंट इज required. Okay, I mean to say, higher the involvement, greater is the rate of success, right? So involve yourself. Okay, children. So children, first see what is happening. See children, see now let us assume this is any denser medium, right? And this is the rarer medium. Clear children? So now what happens? Let us assume this is the rays of light strike at the interface separating the two different media, right? This is medium number 1, I can say, okay, that is mu1 refractive index. This is medium number 2, that is mu2 is the refractive index, and this is the angle of incidence, right children? Now this is the incident ray, I can say, okay, angle of incidence, this one is the normal. Clear children? So children, when the rays of light strike from, when the rays of light passes from the denser medium to the rarer medium, then what will happen children? The light will bend away from the normal. Why? You know it very well. Why? Because when you travel, I mean to say, when the rays of light travel from denser to rarer medium, the refractive index decreases, right? And when refractive index decreases, the speed increases and the rays of light moving away from the normal. So this is what the refracted ray, this is the angle of refraction, right children? So you can see what in this situation, what happens, what takes place. So I can say refraction takes place. Is that clear children? Is that clear, right? Refraction takes place, right? Very simple thing, right children? Now children, what happened? See, I go on changing the value of critical, to say the angle of incidence. I go on increasing the value of what children? That is angle of incidence. So a time will come that refracted ray is more tilted towards the horizontal line. I mean to say towards the medium. Is that clear? बच्चों देखो, अगर जितना तुम इंसिडेंट रे को ऊपर एंगल को जितना बढ़ाओगे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो उतना नीचे चला जाएगा. तो मैंने क्या किया, दूसरा फिगर बोलता हूं बच्चों, मैंने क्या किया, एंगल बढ़ाया 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 और फाइनली किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए बच्चों सेम कंडीशन में, ठीक है, किसी पहले मैं सेपरेटली करता हूं, फिर मैं एक ही डायग्राम में तीनों डायग्राम करूंगा, ठीक है बच्चों. किसी एक एंगल के लिए जिसका नाम है IC, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 90 डिग्री, राइट? तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर I इज इक्वल टू IC, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, रिफ्रैक्टेड रे, राइट? ये हो गया इंसिडेंट रे. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया बच्चों? दैट इज 90 डिग्री हो गया. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो यहाँ पर फेनोमेना क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर लाइट जो है वो जस्ट सरफेस को यूं टच करके निकल गया, ठीक है. तो इसे कहते हैं क्या बच्चों, ग्रेजिंग इमर्जेंस. समझ में आया बच्चों? ग्रेजिंग इमर्जेंस, GRADGING, ग्रेजिंग इमर्जेंस, जस्ट लाइट यू टच करके सरफेस को निकल गया, ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? देखिए केस नंबर 2 था, ठीक है. अब क्या होगा बच्चों, अब तुमने फर्दर जो क्रिटिकल एंगल को, टू से इंसिडेंट रे के एंगल जो है ना,
बच्चों देखो, ये जो I इक्वल टू आई सी है, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल पे ये हुआ। अब तुमने क्या किया, फर्दर क्रिटिकल एंगल को और बढ़ाया। ठीक है बच्चों, जब तुमने फर्दर क्रिटिकल एंगल को, सॉरी, फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया, तो लाइट जो है वो दोबारा नीचे आ जाएगा और इसी मीडियम में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं बच्चों, है ना, क्या होता है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, तुम बढ़ाते गए एंगल, क्रिटिकल एंगल तुमको मिल गया। अब क्या हो गया, ये कोई भी एक एंगल है, ये डेंसर मीडियम, ये रेयरर मीडियम। ठीक है बच्चों, राइट, तो ये एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन हो गया आई सी। तो लाइट जो पहले ग्रेज होकर के जा रहा था, सरफेस को टच करके जा रहा था, अब वो क्या करेगा, उसी मीडियम में दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहीं कोई जाना पहचाना लगता है बच्चों, क्या है, रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन। तो इसका नाम आया, फेनोमेना का नाम आया क्या बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बच्चों, राइट। तो इसका नाम TIR क्यों पड़ा, आओ इसकी चर्चा हम डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो जो 3 डायग्राम हमने बनाए बच्चों सेपरेटली, उसे एक ही डायग्राम में बना के और अच्छे से आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये रहा रेयरर मीडियम, ये रहा डेंसर मीडियम, ठीक है, और ये नॉर्मल मैंने पहला बनाया। ठीक है बच्चों, राइट। तो यहां से लाइट यूं इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो लाइट क्या करेगा बच्चों, रिफ्लेक्ट कर देगा। ये नॉर्मल है, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चों, और उस समय क्या होगा, फिनोमेना क्या होगा बच्चों, फेनोमेना। ठीक है, क्या होगा, फेनोमेना होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे हम जा रहे हैं। ठीक है, राइट। अब क्या होगा बच्चों, सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में होगा बच्चों कि थोड़ा सा और घटा देते हैं, वरना मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं लिखने के लिए बच्चों। आज ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है बच्चों, इसलिए मैंने ब्लेजर पहन रखा है। क्या मैं स्मार्ट लग रहा हूँ बच्चों, राइट। हाँ, उम्मीद तो है मुझे कि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। ठीक है, राइट, एनीवे, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब मैंने क्या किया कि ये क्रिटिकल, ये नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया। अब क्रिटिकल एंगल, आई मीन टू से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं फर्दर बढ़ाते गया, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे मिला, जो कि कहेंगे हम क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों, ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आई कैन राइट, जैसे मैंने लिखा था पहले, क्या, फॉर आई इज इक्वल टू आई सी, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस आई सी को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, राइट। तो यहाँ बच्चों देखो, ये लाइट जो है जस्ट सरफेस को टच करके निकल गया, तो भाई फेनोमेना क्या कहलाएगा, मैंने कहा यस, बताओ क्या कहलाएगा, यस सर, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा फेनोमेना, ग्रेजिंग इमर्जेंस कहलाएगा। ठीक है, राइट। तो बच्चों एरो देना भूलना मत बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया बच्चों, फर्दर क्या किया बच्चों, मैंने फर्दर क्या किया, तो ये भी नॉर्मल है। ठीक है, मैंने अब एक एंगल को फर्दर बढ़ाया, कौन सा एंगल को, कौन से एंगल को, यस बताओ, क्रिटिकल एंगल को। तो बच्चों क्या कंडीशन मिलेगा मुझे, यहां मिलेगा आई ग्रेटर देन आई सी। देखो ये बच्चों आई लेस देन आई सी था, ये था आई इज इक्वल टू आई सी, ये जो है आई जो है वो आई सी से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो पहले टच करके यूं निकल रहा था, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया बच्चों ये। ठीक है, एक मिनट, हाँ, यूं देखो। ठीक है, अब जो है लाइट टच करके सरफेस को निकल रहा था, अब ये क्या करेगा, उसी मीडियम में दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ फेनोमेना क्या होगा बच्चों, फेनोमेना होगा TIR। क्या है TIR बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों जो ध्यान देकर सुनो, जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो क्या होता कि आई लेस देन आई सी था। ठीक है, जब तुमने आई को बढ़ा दिया, किसके बराबर कर दिया, आई सी के बराबर, या आई मीन टू से फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, राइट। Clear children? So now at this
angle of incidence at which the angle of refraction is 90 degree is known as critical angle. Then further you have increased the critical angle, I mean the angle of incidence greater than the critical angle, then the phenomena takes place is TIR. So children, यहाँ पर हमने TIR क्यों बोला, ठीक है, जरा सोच कर देखो ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऐसा हमने इसलिए कहा बच्चों कि इस वाले फिनोमेना में लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा सा भी घटता नहीं है। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं बच्चों, या मान लीजिए बोर्ड की बात करूं, ठीक है, इस बोर्ड पर अगर लाइट आई मीन इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन सम अमाउंट ऑफ लाइट इज एब्सॉर्ब बाय द व्हाट बोर्ड इटसेल्फ, दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। इवन चिल्ड्रन, तुम्हें पता है ना, क्लास 9 में तुमने पढ़ा है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इवन इफ इट इज आई मीन व्हाट दैट मिरर, तो मिरर पे भी लाइट पड़ेगा बच्चों, तो 100% रिफ्लेक्ट नहीं होगा बच्चों, राइट। कुछ लाइट जो है वो मिरर एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी लाइट मीडियम एब्जॉर्ब नहीं किया। जैसे जो भी इंटेंसिटी था लाइट का स्ट्राइक किया ना, वो दोबारा उसी मीडियम में बैक होकर के मिल गया, ठीक है। इसीलिए इसे हमने नाम दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये हो गया केस नंबर 1, ये हो गया केस नंबर 2, ये हो गया केस नंबर 3। समझ में आया बच्चों, ये समझ में आया या नहीं आया बताओ। तो इसी चर्चा हम आगे करने वाले हो, ठीक है, समझ में आया बच्चों, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो बच्चों, ये था पूरा व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ग्लेजिंग इमर्जेंस एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यही बच्चों मैं तुमको और चीजें बताना चाहूंगा। क्या, पहला बच्चों यहां लिखो कंडीशन ऑफ, पहले बताऊंगा बच्चों व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तुम्हें यहां पता चल गया ना बच्चों व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। समझ में आया बच्चों, ठीक है, राइट। तो लिखो बच्चों डेफिनेशन क्रिटिकल एंगल, लिखो टॉपिक का नाम दो क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्या नाम दोगे बच्चों? यस सर, क्रिटिकल एंगल नाम देंगे। मैं डायग्राम को पूरा नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इस डायग्राम को मैं फर्दर यूज करने वाला हूं, ठीक है। जरा ध्यान देकर सुनो, नाम दो क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्या है बच्चों? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of refraction is 90 degree when light travels from denser medium to rarer medium, ठीक है बच्चों, राइट। देखो ये तभी होगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम को जा रहा होगा। तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। समझ में आया बच्चों क्या है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब लिखो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड, लिखो बच्चों रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लिखो बच्चों टॉपिक का नाम दो रिलेशन, बच्चों ये डायग्राम मुझे इस्तेमाल करना है इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल CA एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI। बच्चों मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं तुम प्लीज शॉर्ट फॉर्म में मत लिखो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो यार, जो भी हो रिफ्रैक्शन तो हो रहा ना भाई यहाँ पर, हाँ या नहीं, ठीक है। तो हम अप्लाई करेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज व्हाट स्नेल्स लॉ। तो क्या होगा स्नेल्स लॉ बच्चों? सो यहाँ होगा साइन ऑफ IC बाय साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R, okay, it is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, okay, that must be equal to constant, so that is equal to mu, ठीक है। अब देखो mu यहां से यहां जा रहा है, आई मीन से डेंसर से रेयर जा रहा है, तो ये होगा mu1, ये हो जाएगा mu2, तो क्या हो जाएगा mu2 1, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों क्या होगा एट I is equal to IC, ठीक है, R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये I को IC की जगह में मैं C लिखता हूं बच्चों, ठीक है। हालांकि बात बराबर है, C को मैंने ले लिया क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों देखो, सो पुट कर दो साइन C बाई साइन 90 इज इक्वल टू म्यू। मान लो बच्चों ये वाटर मीडियम है फॉर एग्जाम्पल, है ना, या कोई भी मटेरियल मीडियम है, कोई मैंने ले लिया मटेरियल मीडियम है और इसको ले लिया मैंने एयर मीडियम, ठीक है, बात बराबर है। तो क्या लिखूंगा mu2 1, तो mu2 क्या है बच्चों एयर टू मटेरियल,
ठीक है बच्चों, राइट। तो साइन 90 कितना होता है 1, सो दैट इज साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए एम। सो बच्चों फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, याद है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, म्यू टू 1 इंटू म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1, है ना। तो मैं अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद नहीं है बच्चों तो प्लीज रिफ्रैक्शन थ्रू द एट द प्लेन सरफेस बाय मनीष सर जाके मेरे यूट्यूब चैनल में देख लो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, चैप्टर 4 है, 4B 4C है, 4D है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम म्यू 2 1 निकाल सकते हैं 1 बाई म्यू 1 2, या फिर निकाल सकते हैं म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 2 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच्चों म्यू एम ए, तो आई कैन राइट हियर बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, अब मिटा देता हूँ, ठीक है ना बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो, है ना, ध्यान देकर सुनो, क्या कहा मैंने यहाँ पर, म्यू एम विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्या, दैट इज 1, ओके। तो व्हाट इज म्यू ए एम, दैट इज नथिंग बट 1 बाई म्यू एम ए, ठीक है। क्योंकि बच्चों एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग नियरली इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ फिर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू एम ए, ठीक है बच्चों, ये निकल गया रिलेशन, है ना। इसको फर्दर हम अगर लिखेंगे इन जनरल लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, जरा ध्यान देंगे उसमें क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, ये है सी मतलब क्रिटिकल एंगल और म्यू क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है बच्चों। तो क्या है क्रिटिकल एंगल, तुमको पता है ना, क्या है रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमने अभी प्रूफ कर दिया, ठीक है बच्चों, राइट। अब जरा ध्यान देगा उसमें बच्चों ना, फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैंने कहा कि अगर मैं लेता हूं म्यू ग्लास टू एयर, क्या है वैल्यू बच्चों इसका, अगर तुम्हें याद हो दैट इज 3/2 है, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, सो साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू इज इक्वल 1 बाई 3/2 इज इक्वल 2/3, ठीक है बच्चों। सो आई कैन से साइन सी इक्वल टू साइन 42 डिग्री, हाँ बच्चों, साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो व्हाट इज सी बच्चों, दैट इज 42 डिग्री। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये है क्या क्रिटिकल एंगल, किसके लिए, ग्लास के लिए, तुमको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये क्या है बच्चों, क्रिटिकल एंगल किसके लिए बच्चों, ग्लास के लिए, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, राइट, मैंने क्रिटिकल एंगल निकालना है किसके लिए, वाटर के लिए निकाल दिए सर, पानी पी लेंगे मजा आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो बच्चों मुझे पता है क्या, म्यू डब्ल्यू एयर मतलब वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना बच्चों, 4/3। तो बच्चों क्या करेंगे, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू मतलब 4/3 इज इक्वल टू 3/4, सो साइन सी इक्वल टू साइन 49 इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 49 डिग्री। तो बच्चों ये जो क्रिटिकल एंगल 49 किसके लिए निकला बच्चों, दैट इज वाटर टू एयर मीडियम के लिए निकला, ठीक है, राइट, वाटर के लिए निकला क्रिटिकल एंगल, ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों ये है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। नेक्स्ट राइट ऑल ऑफ यू, राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, राइट डाउन बच्चों, फैक्टर्स फटाफट, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, ठीक है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, ठीक है बच्चों। दो क्या कहता है बच्चों, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है क्रिटिकल एंगल को, ध्यान देकर सुनो ना। वी नो दैट साइन सी बराबर 1 बाई म्यू, ठीक है बच्चों, राइट, ये तो रिलेशन बन गया। तो क्या क्या फैक्टर है, एक है बच्चों टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों वेवलेंथ, और दोनों ही म्यू पे डिपेंड करता है, और आई मीन से दोनों पे म्यू का वैल्यू डिपेंड करता है। ध्यान देखिए सुनो बच्चों, पहला मैं लिखता हूं टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा जाहिर सी बात है क्या, एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी क्या होता है बच्चों, दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर, अरे यार हाँ या नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर बढ़ जाएगा, तो हाफ तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, तो मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज म्यू के लिखता हूँ म्यू, है ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो म्यू घट जाएगा, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, वेलोसिटी बढ़ा म्यू घटा, और जब म्यू घटा मेरे बच्चों तो साइन सी बढ़ जाएगा, और साइन सी बढ़ा तो सी बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्रिटिकल एंगल ऑल्सो
इंक्रीजेस। समझ में आया बच्चों? बड़े ही आसान से मैथमेटिकल तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है, राइट। अब दूसरा आते हैं बच्चों, दूसरा आते हैं ना, दूसरा क्या बच्चों? वेवलेंथ। तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, हमको पता है क्या, भी इक्वल टू एफ लैम्बडा, ठीक है बच्चों, वेवलेंथ के लिए बात करते हैं। लैम्बडा क्या है बच्चों? कलर ऑफ लाइट, राइट, ओके। सो फ्रीक्वेंसी तो कौन सा होता है, याद है बच्चों? Refraction is a surface phenomena. While a ray of light traveling from any medium, I mean to say rarer to denser or denser to rarer, frequency remains the constant children. ये तुमको पता याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने चर्चा करी है इसकी अपने चैप्टर नंबर 4A में, ठीक है, रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। समझ में आया बच्चों? अब यार ध्यान देकर सुनो बच्चों, एफ तो कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या, v इज डायरेक्टली टू लैम्बडा, ठीक है। तो अगर लैम्बडा बढ़ेगा इंप्लाइज स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ेगा इंप्लाइज म्यू घट जाएगा, म्यू घटेगा तो बच्चों साइन सी बढ़ जाएगा, साइन सी बढ़ेगा तो म्यू सॉरी सी बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ भी, देखो बी आई बी जी वाई ओ आर, सो विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ क्रिटिकल एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस। सो बच्चों हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, इंप्लाइज स्पीड बढ़ता है, इंप्लाइज म्यू घटता है, इंप्लाइज साइन सी घटता है, इंप्लाइज सी भी घटता है। तो विथ इंक्रीज इन क्या क्या बच्चों? वेवलेंथ क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस। जरा ध्यान देना है, इसलिए क्रिटिकल एंगल इन केस ऑफ वायलेट इज लेस्ट एंड इन केस ऑफ रेड दैट इज मोस्ट, और आई कैन से मैक्सिमम। क्लियर बच्चों? समझ में आया? इन दो चीजों पे क्या डिपेंड करता है? क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। बहुत ही आसान है सर, स्वाद आ गया, मजा आ गया, इतना आसान है, यस बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्या टॉपिक है आगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो अब आता है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही, ठीक है। नाम दो बच्चों TIR, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो तुम्हें मैंने कहा ना बच्चों, क्या कहा मैंने, देखो सबसे पहला कंडीशन कि लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, ये सवाल भी आता है बच्चों, ठीक है। ये डेंसर हो गया, रेयर हो गया, ठीक है बच्चों, राइट। तो लाइट ही हो गया, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, ग्लेजिंग इमर्जेंस हुआ। जैसे जैसे तुम क्रिटिकल आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करते रहे, बढ़ाते रहे, ठीक है बच्चों, वैसे वैसे चीजें बदलती गई। पहले क्या था, अगर क्रिटिकल आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा था, ठीक है, उस समय क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। फिर क्रिटिकल एंगल पर जब पहुंचा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस समय ग्लेजिंग इमर्जेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90। अब जब तुम आई को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, कमिंग बैक टू द सेम मीडियम, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, यू कैन से चिल्ड्रन, राइट। सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसी फिनोमेना क्या कहते हैं बच्चों, TIR, ठीक है। तो जैसा मैंने तुम्हें कहा, क्या कहा बच्चों कि यार TIR क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर लाइट 100% रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है, राइट। जैसे कि मैंने कहा कि बोर्ड पे लाइट पड़ रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर ले रहा है। इवन मिरर ऑल्सो, कितना चिकना है मिरर, राइट, आई मीन से पॉलिश्ड है, राइट, इसके बाद भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन भी हो जाता है और पार्शियली एब्सॉर्ब हो जाता है एनर्जी। क्लियर चिल्ड्रन? इसलिए वहां पर 100% हमको इंटेंशनल लाइट का मिल नहीं पाता है, ठीक है बच्चों, राइट। देन राइट कंडीशन फॉर TIR, what is the condition पहला, the rays of light must passes from denser to rarer medium, पहला कंडीशन, लाइट कहां से कहां पास कहां चाहिए, डेंसर से रेयर। दूसरा क्या बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। समझ में आया बच्चों? ये दो केस होना चाहिए तभी जाकर के होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो ये था क्या, TIR, ठीक है, राइट बच्चों, TIR समझ में आया, यस सर समझ में आ गया TIR, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक नोट लिखो बच्चों, जरा ध्यान देगा, सुनो मैंने कहा तुम्हें क्या, जो कहा वही मैं बता रहा हूं, ठीक है बच्चों, ध्यान देगा सुनो। ओके, तो बच्चों क्या रहा ये नोट मैंने कहा, ठीक है, क्या कहा मैंने, ध्यान देकर सुनो कि बच्चों अगर प्लेन मिरर है या फिर मान लो कि रेयरर से डेंसर पे लाइट जा रहा है, ठीक है, जरा सोच के देखो, है ना, मान लो इवन प्लेन मिरर में, है ना, ये रहा रेयरर से लाइट यहां से, है ना, ये हुआ
क्या इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये मान लो रेयर, ये हो गया डेंसर। तो लाइट क्या होगा बच्चों, लाइट क्या होगा, रेयर तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जा रहा है, ऑब्स्टेकल बढ़ जा रहा है, तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, जैसा हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तुम अगर फर्दर इसको बढ़ाओगे क्या, तो ये फर्दर कहाँ जाएगा बच्चों, ये उधर जाएगा बच्चों, राइट, उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, ठीक है, ऐसे का नहीं समझ में आएगा बच्चों। एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुमको बढ़ाना है, ठीक है, तो जो तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ था पहले, अब यहाँ कर दोगे, ठीक है, तो ये हो गया, बढ़ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा तो यार ये भी तो उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये तो ना, ये जो रिफ्रैक्टेड रे इट विल नॉट इवन बेंड टुवर्ड्स व्हाट, नॉर्मल नहीं आएगा, होगा जो, लेकिन थोड़ा सा इधर जाएगा, ठीक है, राइट, तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है, तो यार जब ये बढ़ते 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 क्या होता है, तुम जिसको यहाँ करते जाओगे तो यहाँ जाएगा इधर ना, मान लो फिर यहाँ किए इसको, तो ये फिर यहाँ गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, तो तुमको जो क्रिटिकल एंगल अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, राइट, पहली बात। दूसरी बात बच्चों क्या होगा कि जब रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक किया है तो याद हो, यहाँ तो रिफ्लेक्शन करेगा कुछ ना कुछ पोर्शन, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टेड, है ना, और क्या हो जाएगा, कुछ रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है, और कुछ जो है ये मीडियम अपने आप में क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इसलिए 100% लाइट ना तो रिफ्लेक्ट होगा और ना ही रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, सो इट इज ओनली TIR जहां पर 100% लाइट क्या किया बच्चों, रिफ्रैक्ट करेगा, जो भी एनर्जी लाइट का पड़ा, ठीक है, वो 100% एनर्जी बैक हो गया इन द सेम मीडियम, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है, तो कहाँ यूज करते हैं बच्चों इसको, बाइनोकुलर में यूज करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, हम लोग इसको पेरिस्कोप में यूज करेंगे, अरे यार हाँ यार, पेरिस्कोप जानते हो बच्चों, जो पनडुब्बी रहता है, आई मीन से जो क्या उसको बोलते हैं, सबमरीन, या सबमरीन तो पानी के अंदर रहता है ना, अब दुश्मन तो पानी के ऊपर में है, वो तो ठीक है, हम सोनार छोड़ेंगे, आई मीन टू से क्या अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे, वो रिटर्न आ जाएगा, वो तो एको आई मीन टू से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन देखेंगे कैसे, तो देखिए हो तुम मूवीज वगैरह में देखे होगे, है ना, नहीं ऐसे 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 एक वर्टिकली पाइप के थ्रू से यहाँ लगा होता है क्या, मिरर ऐसे लगा होता है, ठीक है, तो लाइट ऐसे टकराया और लाइट को बेंड कर दिया ताकि तुम्हें दिखाई दे, ठीक है बच्चों, तो वहां इस्तेमाल होते हैं, पेरिस्कोप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और बाइनोकुलर में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है, राइट, कैमरा में भी TIR कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, कैमरा के लेंसेज में, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों लिखो द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ प्रिज्म, लिखो बच्चों, TIR इन अ प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन अ प्रिज्म, ठीक है बच्चों, तो प्रिज्म में 3 तरीके से हमें इस्तेमाल करना है TIR को, है ना, तो पहला लिखो बच्चों सॉरी बच्चों, लिखो द टोटल TIR थ्रू अ, लिखो पहला नाम दो बच्चों, TIR थ्रू 90 45 45 90 45 प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म, ठीक है, क्या बच्चों, प्रिज्म, ओके, राइट एंगल प्रिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसको इसी को बोल देंगे बच्चों क्या, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, प्रिज्म, TRP शॉर्ट फॉर्म में, सर वो तो टीवी में दिया जाता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, TRP के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, राइट, ओके, तो वो वाला TRP नहीं है बच्चों, ये हमारा टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है ना, तो बच्चों देखो क्या है ये, मैं पढ़ता हूं तुम्हें ध्यान देगा सुनो, a prism having an angle of 90 degree between two refracting surfaces and other two angles is equal to 45 degree is called a total reflecting prism, ओके बच्चों, ठीक है, तो देखो बच्चों मैं बोलता हूं क्या है, बच्चों नींद आ रहा है क्या तुम लोगों को, बस अब और 10 मिनट यार हो जाएगा, ठीक है, देख ध्यान देगा सुन बच्चों, है ना, क्या कहा मैंने, एक प्रिज्म है यार, है ना, तो इसका ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हो गया 45, ये हो गया 45, तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों के बीच का एंगल कितना बच्चों, 90 डिग्री,
ठीक है। अभी बाकी दोनों एंगल 45 45, तुम हालांकि 60 30 30 60 भी ले सकते हो, ऐसे हम बहुत सवाल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो टीआरपी का इस्तेमाल करेंगे। क्या टीआरपी सर? यार टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूँ, आई मीन प्रिज्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो टीआरपी जो है वो कहाँ कहाँ यूज होगा। तो पहला लिखो बच्चों, पहला पहला कहाँ यूज होगा, देखो टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, लिखो टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, पहला। ठीक है बच्चों, राइट, क्या क्या हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा बच्चों, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। ठीक है, और तीसरा लिखो बच्चों, क्या देगा, टू इरेक्ट अन इन्वर्टेड इमेज, टू इरेक्ट अन इन्वर्टेड इमेज, अनइन्वर्टेड क्या बच्चों, इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन, विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन, है ना, डेविएशन, डेविएशन इन इट्स पाथ, इन इट्स पाथ। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीज तुम्हारा सिलेबस में है, तो आप पढ़ते हैं पहला वाला। ठीक है, आओ पढ़ते हैं, लिखो बच्चों, टॉपिक का नाम दो, क्या, डेविएट, आई मीन टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री। बड़ा ही आसान है यार, देखो तुम्हें मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट, तो प्रिज्म लो बच्चों, ऐसे ऐसे प्रिज्म लो एक। ठीक है, मैंने ये टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लिया। ठीक है, जिसका एक 90 डिग्री, ये 45, ये 45, ये मान लो ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, और रेज ऑफ लाइट यूं आ रहा है परपेंडिकुलरली। ठीक है, राइट, ए बी सरफेस को। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे। अब तुमको बनाना है रे डायग्राम। एक सवाल इससे आते हैं बच्चों, 2 मार्क का या 3 मार्क का एक सवाल इससे पक्का तुमको मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, कहाँ मिलेगा, जाहिर सी बात है बोर्ड एग्जाम मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं ना। तो बच्चों हमको पता है कि जब रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है नॉर्मल, इट पासेस अनडेविएटेड, तो अनडेविएट पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे नॉर्मल। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, सिर्फ एंगल का खेल है। ये 90, ये 45, तो ये कितना होगा बच्चों, 45 होगा। ये पूरा कितना है बच्चों, 90 है, जिसमें ये 45, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 45। तो बच्चों ये जो लाइट है ये है नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 45। ठीक है बच्चों, बट ये ग्लास है, तो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है बच्चों, 42 है। तो यहाँ पर जो एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो बच्चों याद करो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्या होता है, फिनोमेना, फिनोमेना होता है टीआईआर। ठीक है बच्चों, राइट, तो टीआईआर आ जाएगा, तो मतलब लाइट ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये 45 बच्चों रिफ्लेक्शन हुआ है, ये 45, तो ये भी 45 होगा। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो ये पूरा कितना है, 90 है, तो ये 45, तो ये कितना हो जाएगा, 45। देखो ये 45, ये 45, तो ये कितना होगा, 90। मतलब लाइट कैसे स्ट्राइक कर रहा है नॉर्मली, तो इट पासेस अनडेविएटेड। देखिए बच्चों कितना आसान है, राइट। तो एक और जैसे लिए था ऐसे एक और ले लो, सेम तरीका से आएगा यार। समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ। ठीक है, तो लाइट को क्या कर देगा, 90 डिग्री बेंड कर देगा। आया बच्चों समझ में, ठीक है, राइट। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं यार, बहुत आसान है यार, स्वाद आ जाते हैं। ठीक है, राइट, डायग्राम बनाओ बच्चों ये वाला पॉज करके। ठीक है, अब दूसरा वाला बनाते हैं। दूसरा कितना डिवाइड करेंगे, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो लिखो या अच्छा पहले बच्चों इसका यूज क्या है लिखो, आप प्रीवियस वाला यूज लिखो बच्चों। यूज है दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म यूज्ड इन अ पेरिस्कोप। ठीक है बच्चों, पेरिस्कोप में देखो लाइट क्या हुआ, 90 डिग्री बेंड हो गया। पेरिस्कोप कैसा, देखो यहाँ से निकला हुआ है ऐसे, क्या यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, ताकि और मैं देख यहाँ से रहा हूँ, यहाँ भी ग्लास लगा हुआ है, तो लाइट क्या किया, ऐसे आया, ऐसे बेंड करके फिर 90 डिग्री में बेंड कर दिया, तो मुझे क्या बच्चों, इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का दिख गया। तो इसे कहाँ यूज करते हैं, पेरिस्कोप में। ठीक है, अब लिखो बच्चों, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट, लिखो नेक्स्ट, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट, लाइट थ्रू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, राइट। तो मैंने प्रिज्म को थोड़ा सा खिसका दिया। ठीक है, मैंने यूं ले लिया, यूं ले लिया, देखो यूं रहा प्रिज्म। बहुत आसान है यार, बहुत आसान, स्वाद आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये हुआ ए, ये बी, ये सी,
ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, राइट। अब लाइट यूं स्ट्राइक कर रहा है एक एंड से नॉर्मली, ठीक है, तो कहाँ चल जाएगा, पासेस अनडेविएटेड। बच्चों इतना देखो तुमको छोड़ देगा, यू हैव टू कंप्लीट द डायग्राम। ठीक है, तो पासेस अनडेविएटली, आई मीन अनडेविएटेड पास हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जब व्हेन द रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक परपेंडिकुलरली इट पासेस अनडेविएटेड। ठीक है, डेविएशन नहीं होगा, जैसे लाइट आया था वैसे निकल जाएगा। तो बच्चों ये 90 है, ये 45 है, ये कितना है 45 है, ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बनाओगे बच्चों, एक नॉर्मल। ठीक है, ये 90, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा सर 45 हो जाएगा। ये 45, ये पूरा कितना 90, तो ये कितना हो जाएगा सर 45 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ यहाँ पर, आई हो गया 45। ग्लास है तो क्रिटिकल एंगल 42 है ना, तो आई इज ग्रेटर देन आई सी या क्रिटिकल एंगल। हाँ यानी तो क्या होगा, क्या होगा यार, क्या होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन, टीआर होगा। हाँ यानी तो बच्चों यहाँ टीआर हो गया, ऐसे समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे पता है रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 45, तो ये 45, लेकिन ये पूरा कितना है बच्चों 90 है, तो ये कितना होगा 45 होगा। हाँ यानी ये 45, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 45 हो जाएगा। अब यहाँ एक ड्रॉ कर दो क्या, नॉर्मल। ये 45 पूरा कितना बच्चों 90, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हाँ कि नहीं, फिर क्या हुआ यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45, ये वाला। तो आई इज ग्रेटर देन आई सी हो गया। अरे हाँ यानी तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, टी आई आर होगा, तो जाहिर सी बात यहाँ आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये 45, तो ये भी कितना होगा बच्चों 45। बाबा ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, आई मीन रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो ये पूरा कितना है 90 है, तो ये 45, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 45, ये 45, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 90। रेज ऑफ लाइट यूं बाहर निकल जाएगा। देखो बच्चों गया था ऐसे, उल्टा आ गया। अरे यार हाँ या नहीं बताओ यार, बहुत ही आसान सवाल है यार। कोई और लाइट यहाँ से ले सकते हो, ऐसे ऐसे, तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक इमेज तुम रख दो यहाँ से ऐसे, मान लो ये हो गया P, ये हो गया Q, तो ये हो गया P डैश, ये हो जाएगा Q डैश। ठीक है बच्चों, इमेज उल्टा हो जाएगा 180 डिग्री। आया बच्चों, देखो बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, एकदम रटने का नहीं है बच्चों, एकदम रटने का नहीं है। ठीक है, राइट, आया समझ में। तो ये खत्म हुआ हमारा सेकंड, बस लास्ट बचा हुआ बच्चों। बस तुम्हारी पेशेंस की मैं बता देता हूँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ जा रहा है यार, है ना। ठीक है, राइट, मुझे पता है ये बहुत ही मजेदार पार्ट मतलब पढ़ाई है। ठीक है बच्चों, इसका यूज देखो बच्चों क्या है, दिस एक्शन ऑफ प्रिज्म इज यूज्ड इन अ बाइनोकुलर एंड कैमरा टू इन्वर्ट द इमेज विदाउट द लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो इंटेंसिटी को लॉस किए बगैर, राइट, इंटेंसिटी को लॉस किए बगैर तुम उसको फ्लिप कर, इमेज को फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइनोकुलर एंड कैमरा, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं लास्ट वाला एक्शन यार। ठीक है, टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज, देखो टू इरेक्ट अन इन्वर्टेड इमेज। सर आपका हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, हम समझ सकते हैं यार, क्या करें बताओ ना। इन्वर्टेड इमेज, ओके, विदाउट डेविएशन, थोड़ा सा विदाउट डेविएशन, ये थोड़ा समझने वाला है बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा समझने में तुमको थोड़ा सा और फोकस होना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अब क्या हुआ बच्चों, देखो ध्यान देकर सुनो, ये एक प्रिज्म मैंने ले लिया, ठीक है, ध्यान देकर सुनो, है ना। तो नाम दे दो बच्चों, ए बी सी कहाँ गई थी, ओके, नहीं पता कहाँ गए थे यार। ठीक है, राइट। अब जरा ध्यान देकर सुनो, है ना। एक रेज ऑफ लाइट यूं आया किसी भी एक एंगल में, ठीक है बच्चों। अब ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों, कोई भी एक एंगल में स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एयर मीडियम है, ये वाला एयर मीडियम है, और ये क्या है, ग्लास मीडियम है। तो एयर से जब ग्लास में आएगा तो क्या होगा बच्चों, जाहिर सी बात है रिफ्रैक्शन होगा। तो मुझे पहले यहाँ नॉर्मल बनाना पड़ेगा, हाँ या नहीं बच्चों। अब ये है 45, ये है 45, मैंने ये नॉर्मल बना दिया। ठीक है, तो लाइट क्या होगा बच्चों, देखो लाइट एयर से ग्लास जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर ये लाइट सीधा जाता, अगर कोई भी रिफ्रैक्शन ना होता तो लाइट सीधा जाता, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है और टुवर्ड्स नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो नीचे है, तो लाइट नीचे बेंड होगा ऊपर बेंड होगा, सर ऑब्वियसली नीचे बेंड होगा, क्योंकि बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया बच्चों। ठीक है, अब जरा ध्यान देके देखो, यहाँ पर एक नॉर्मल बनाओ तुम लोग, यहाँ पर एक और नॉर्मल बनाओ यहाँ पर। ठीक है,
तो बच्चों ये एंगल कितना हो गया, नॉर्मल हो गया, 90 डिग्री, जाहिर सी बात है ना। अब बच्चों देखो हमको ये एंगल नहीं पता है, देखो हमें ये पता है कि ये एंगल होगा 90 डिग्री, है ना, ये 45 होगा, ठीक है। तो जब ये एंगल पता नहीं चलेगा बच्चों, तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है लेकिन एक इक्वेशन है ना, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल निकाला जा नहीं सकता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो एंगल है ना, इसको नियरली हम ले लेते हैं, ये मान लो R1 है, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, R1 होगा ना, तो R1 नियरली लेते हैं बच्चों 28 डिग्री, है ना, 28 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया हमने। 28 कैसे पता चला सर आपको, यार तुम्हें ये रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा तब जाकर पता चला, वरना कोई तरीका नहीं है जहां से तुम निकाल रहे हो यहाँ से एंगल, कैसे निकालोगे बताओ ना यार, ये तो 90 डिग्री पूरा बनता है, ठीक है। वो इससे पहले वाले केसेस में क्या है कि लाइट अनडेविएट पास हो जाते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है पहले, ठीक है, राइट। तो ये जो R1 है कितना है, 28 है बच्चों, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, इसको याद रखो बच्चों, है ना, 28, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 90 + 28 कितना होगा बच्चों, 90 + 28 इज 8 9 2 118, ये हो गया 45, ऐड कर दो, 8 5 13 3, अरे यार हाँ यानी 8 5 13 3, 4 1 5 1 6, 163, ठीक है। तो 180 से माइनस कर दो 163, सो 10 से 3 गया सर 7 होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 17 16 गया 1, ये क्या होगा 17 डिग्री होगा, राइट। तो अगर ये 17 तो ये कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा बताओ मुझे, कितना हो जाएगा, 19 - 17, 73 आई थिंक, हाँ ये हो जाएगा 73, ठीक है बच्चों। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, 73, क्रिटिकल एंगल कितना है बच्चों, 42, तो क्या हुआ, I इज ग्रेटर देन IC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर TIR हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 73 तो ये भी कितना होगा बच्चों, 73, ये 73 कितने कितना हो जाएगा 17, अरे यार हाँ यानी, अब यहाँ फिर क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे बच्चों, फिर बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है। तो ये 17 थे, अब देखो ये रहेगा 90 डिग्री, यार नहीं समझ में आ रहा है क्या बच्चों, ये तो हमने बनाया ना, क्या हमने क्या बनाया, इसे थोड़ा सा और टिल्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, थोड़ा सा ये क्रिटिकल है बच्चों, है ना। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो अब ये हो गया R2, मान लो R2, तो बच्चों R2 भी कितना होगा, लगभग 28 डिग्री, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ यानी, ठीक है, राइट, हाँ यानी। तो ये हो गया 17 डिग्री, राइट। तो हालांकि ये 73 हुआ, ये 45 पे 90, तो कितना हो जाए, इसी बात है R1 बराबर R2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, दैट इज 28। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बच्चों, 28, बट क्रिटिकल एंगल कितना है 42, तो I क्या हो गया, लेस देन IC, तो क्या होगा फेनोमेना, क्या होगा सर, रिफ्रैक्शन होगा, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। जब रिफ्रैक्शन होगा तो बच्चों ये ग्लास से एयर गया, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चों ये लाइट सीधा यूं निकल जाता, ठीक है, अगर बेंड ना होता तो, ठीक है, तो बेंडिंग हुआ क्या होगा, अवे हो तो नीचे आएगा, ऐसी बात है, अरे यार ऊपर जाने से बेंडिंग टुवर्ड्स हो गया, नीचे आने से बेंडिंग अवे हो गया, ठीक है, राइट बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये बेंडिंग अवे ऐसे हो जाएगा, समझ में आया बच्चों डायग्राम, हाँ या नहीं, ठीक है। तो एक और ऐसे ले सकते हो, एक और लाइन अगर ऐसे ले लोगे तो बच्चों पहले तो समझ लो, ठीक है, हो गया क्लियर, बोलो हाँ या नहीं। तो एक और लाइन यूं ले लो यार, ऐसे एक यूं ऐसे ले लो तो ऐसे जाएगा, अरे बाबा हाँ या नहीं समझ में आ रहा है क्या, फिर यहाँ से देखो, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से फिर जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर यहाँ चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मान लो ये हुआ PQ, देखो P कहाँ आया, P यहाँ आ गया, Q वहाँ आ गया, तो P डैश Q डैश, तो क्या हो गया बच्चों, ये इमेज क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, समझ में आया। तो बच्चों ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, हालांकि है नहीं, ये मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटल डेटा बताया, 28 डिग्री R1 R2 दोनों, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल अगर आएगा तो तुम ऐसे बनाओगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये खत्म हो गया, कुछ एक सवाल और मैं और कर देता हूं, बड़ा ही आसान सवाल है, तुम्हें बड़ा ही मजा आएगा ऐसा सवाल करने में, ठीक है, राइट बच्चों। तो ये था 90 45 45, क्लियर। अब आते हैं बच्चों, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू 30 90 60, ठीक है बच्चों। अब दूसरा करते हैं, यही TIR करते हैं, ओके, 30 90 60 में, ठीक है, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, देखो बहुत आसान है,
एक दो सवाल मैं करता हूँ, उसके बाद तुम खुद करना, ठीक है। अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, ठीक है। मान लो ये 90 है बच्चों, ये मान लो 30 है, ये मान लो 60 है। लाइट यूं आ रहा है, स्ट्राइक किया नॉर्मली, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, दो डायग्राम, क्या होगा, इट पासेस अनडेविएटेड, ठीक है। तो ये 90 है नॉर्मली है, तो ये भी 90 होगा। ये 90 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 9, ये हो जाएगा 60। अरे हाँ, यानी यहाँ तुम क्या ड्रॉ कर दो, एक नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ की, ये पूरा कितना है बच्चों 90, ये 60 कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ पर आई कितना हो गया 30, क्रिटिकल एंगल कितना है 42, आई इज लेस देन आई सी। तो क्या होगा फिनोमेना, रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आया बच्चों, जो मैंने एक डायग्राम में तीनों डायग्राम करके दिखाया था, है ना। फिनोमेना क्या क्या होगा, रिफ्रैक्शन, क्रेजिंग इमरजेंस और टीआईआर, ठीक है बच्चों, राइट। तो रिफ्रैक्शन होगा मतलब क्या होगा बच्चों, ये ग्लास है, ये एयर है, तो ग्लास से एयर जाएगा तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया बच्चों, निकल जाएगा, ये डायग्राम बन गया, ठीक है। आया समझ में, अरे हाँ या नहीं यार, नहीं समझ में आया क्या, आ गया सर, ठीक है। एक और सवाल करते हैं बच्चों, मैंने इसका देखो एक और सवाल करते हैं, ठीक है। ध्यान देके देखो, हाँ बच्चों, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, ध्यान दो, ये 30 था, नाम लिया था पहले, ये 30 है, ये 60 है ना, और रेज ऑफ लाइट कहीं यूं ऐसे ही जा रहा है, ऐसे स्ट्राइक किया नॉर्मली, ठीक है बच्चों। ये 90 हो गया, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, हाँ? तो इट पासेस अनडेविएटेड, हाँ या नहीं, ठीक है। ये 90 तो ये 90, ये 90 30 तो ये कितना 60 तो ये कितना हो जाएगा 30, यहाँ बना देंगे क्या नॉर्मल, ठीक है। ये 30 तो ये कितना हो जाएगा, पूरा कितना है 90 तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 60, क्रिटिकल एंगल कितना हुआ 42, आई इज लेस देन ग्रेटर देन क्या आई सी। तो क्या होगा, फिनोमेना इज टी आई आर होगा। तो ये 60 है, तो यहाँ से भी 60 होगा, कि एक और एंगल निकाल दोगे तुम, तो ये भी 60 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, अरे हाँ या नहीं, ये 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 30 ये कितना होगा, पूरा 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बना देंगे नॉर्मल, तो ये 90 और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 30 हो जाएगा, तब 120 हो जाएगा, हाँ या नहीं यार। तो ये 30 डिग्री हुआ, तो यहाँ पर आई कितना हो गया, दैट इज 30, आई सी कितना 42, आई इज लेस देन आई सी, फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो क्या है बच्चों, अगर मान लो अगर ये नहीं हो, मतलब क्या बोलता हूँ उसको, अगर रिफ्रैक्ट नहीं हो तो सीधा निकल जाता है ऐसे, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब क्या, बेंडिंग, ग्लास से एयर जा रहा है ना बच्चों, तो बेंडिंग अवे होगा, तो ये यहाँ से यूं बेंड कर जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया या नहीं आया, सर आपने डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, अरे यार कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है यार, ठीक है, हो जाएगा बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 60-30 को बदल देंगे, है ना, हो गया, ठीक है। 60 और 30 को बदल देंगे, ठीक है बच्चों, राइट। 60 और 30 को बदल देंगे, ध्यान देके सुनो बच्चों, ध्यान देके सुनो, बहुत ही आसान। ये अब कर दिए 60, ये कर दिए 30, समझ में आया बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ यार तुमने तो परपेंडिकुलर यूं जैसे पहले वाला किया था, ये क्या हो गया 90 हो गया, पासेस अनडेविएटेड, ठीक है। ये 90 ये 90, तो ये कितना 30, यहाँ बना लिया नॉर्मल, अरे यार हाँ यार नहीं, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। तो आई कितना हो गया, दैट इज 60, आई सी कितना है, दैट इज 42, आई इज ग्रेटर देन आई सी, फिनोमेना इज टी आई आर, हाँ या नहीं, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। तो अगर ये टी आई आर, आई मीन टू से, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, देखो जो 90 ये 90 हुआ, हाँ तो ये 60 से 90 हो गया, ठीक है। ये 30 तो ये 60 हो गया, तो क्या होता है रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री में यूं ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये 60 तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 60 तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 30 कितना 60, तो ये हो जाएगा 120, तो यहाँ ये पूरा कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, एक क्या नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 90, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अरे यार हाँ या नहीं यार, तो यह यहाँ कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 30, तो आई कितना 30, आई से कितना 42, तो आई इज लेस देन आई सी, फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन, समझ में आया बच्चों। हाँ तो क्या होगा, लाइट बैंड रिफ्रैक्शन करेगा, तो ये ग्लास मीडियम है, ये एयर मीडियम है, तो क्या होगा, लाइट बैंड ग्लास एयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट यूं निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों, देखो तो कितना आसान सवाल है, राइट, हाँ या नहीं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों तुमको ये सब समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल करता हूँ, उसके बाद विराम दूंगा, है ना। एक और तुम्हारे बुक का ही सवाल है बच्चों, है ना, बुक का सवाल, जरा ध्यान देकर सुनो, है ना। ये सवाल है, यूं बुक का ही सवाल है, ठीक है। यूं लाइट स्ट्राइक किया, मान लो ये एंगल है 48 डिग्री, कंप्लीट द डायग्राम, क्रिटिकल एंगल तुमको दे रखा है 42, ठीक है। तो क्या बनाओगे बच्चों, पहले बनाओगे नॉर्मल, तो बच्चों अगर ये 48 है तो ये कितना होगा
42 होगा, बोलो हाँ कि नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बच्चों 42, और क्रिटिकल एंगल कितना है 42, तो आई बराबर आई सी। तो फिनोमेना क्या होगा बच्चों, दैट इज क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। ठीक है, तो लाइट देखो जस्ट सरफेस को यूं टच करके आगे निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब मैं जरा थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझ में आया बच्चों, मैं इसको बना दूं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, क्या किया बच्चों, मैंने सेम डायग्राम रखा, मैंने यूं रखा। अब क्या किया, मैंने इसको दे दिया 42 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आई इज इक्वल टू 48, आई सी इज इक्वल टू 42, आई इज ग्रेटर देन आई सी, फिनोमेना इज टी आई। हाँ, तो 48 है तो 48 पे यहाँ आएगा। तो यार ये 48 तो कितना होगा 48, तो ये कितना होगा 42। नहीं समझ में आ रहा है क्या, बहुत आसान है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों एरो देते रहना। ठीक है, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, 48 तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा 48 होगा, ये कहता है लॉट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या बनाऊंगा, मैं नॉर्मल बनाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये 42, ये कितना 90, तो ये कितना बच्चों 48, तो ये कितना 42। नहीं समझ में आया क्या? तो यहाँ क्या हो गया, आई बराबर 42, आई सी बराबर 42, आई इज इक्वल टू आई सी। तो लाइट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो अगर एंगल बदल देने से क्या हो जा रहा है मेरे बच्चों, हाँ टोटली कॉन्सेप्ट बदल जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर जबरदस्त समझ में आया होगा। ठीक है, बड़ा ही मजा आया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ में आया है, तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है, क्या करना है तुम्हें इस चैनल को धड़ल्ले से शेयर करना है। राइट, हाँ यानी खूब मन लगा के इसको पढ़ना है बच्चों। और अगर कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन खूब मन लगा के पढ़ो, खूब जी लगा के पढ़ो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।